days to go before Bihar heads to polls for the 2025 Assembly election, there is a fever pitch for an election that may go down as one of the most tightly contested battles of all time in Bihar's Mahua constituency. The Mahua Assembly constituency is one of the 243 Vidhan Sabha constituencies of Bihar. One of the 6 assembly constituencies in the Hajipur Lok Sabha, it is one of the original constituencies of the Bihar Vidhan Sabha, with an electoral history that goes all the way back to 1952. The population of Mahua is 100% rural. According to the latest census data, nearly 21.58% of Mahua's population falls under the scheduled caste segment, alongside a nearly negligible percentage in the scheduled tribes. 88.7% of the population is Hindu and 11.02% of the population is of the Muslim faith, with the remaining made up by other religious beliefs. According to the Special Intensive Revision Exercise data, the Mahua Assembly constituency has a total projected population of 4.98 lakhs, of which just under 3 lakh qualify to vote in this election. In the 2020 Assembly elections, Siwan saw a voter turnout of 60.04%. The village of Mahua takes its name from a tree native to these lands. Known beyond India as the Indian butternut tree, the Mahua tree represents the center of life for the locals of this constituency, who make everything from oils to furniture to even the famous Mahua liquor from the various products of this tree. This tree of life is culturally and economically vital to local and tribal communities, so much so that this town takes its name from this plant. The Mahua constituency has been a bastion of the Rashtriya Janata Dal since the turn of the 21st century, losing out just once in 6 elections held in Bihar since 2000. In 2010, Janata Dal United's Ravindra Rai defeated the RJD's Jageshwar Rai by a margin of over 21,000 votes, as the BJP-JDU alliance swept the Vaishali district. In 2015, the RJD recaptured the seat with Tej Pratap Yadav defeating Ravindra Rai by a margin of 28,000 votes. The sitting MLA is the RJD's Mukesh Kumar Roshan. This assembly election brings about an interesting battle in the constituency of Mahua. The RJD may have maintained their faith in sitting MLA Mukesh Kumar Roshan, who will be faced by the eldest son of former Chief Ministers Lalu Yadav and Rabri Devi, Tej Pratap Yadav. Following his headline-grabbing expulsion from the RJD in May 2025, Tej Pratap has floated a new party called the Jan Shakti Janata Dal and will be contesting from both constituencies he has won in the past. In this episode, we focus on the battle in Mahua. Tej Pratap Yadav is definitely one of the more interesting faces in this election. The eldest son of former Chief Ministers Lalu Yadav and Rabri Devi, Tej Pratap made his electoral debut in 2015 when he won from Mahua on the RJD's ticket and then went on to win in Hasanpur in 2020. The two-time MLA has served as the Minister for Environment, Forest and Climate Change and Backward Classes over his terms in the Vidhan Sabha. Tej Pratap's biggest opponents in this election are the incumbent MLA, Mukesh Kumar Roshan, who defeated the JDU's Ashma Parveen by a margin of 13,770 votes. Ashma Parveen, contesting this election as an independent candidate, scored over 43,000 votes last time around and could well make this 3-horse race in Mahua. In this episode of The Road Stop, Team NewsX heads to Mahua to map the mood of the masses ahead of this hugely interesting election battle. Hello and welcome to The Road Stop, and in this episode of The Road Stop, we are here in the Mahua constituency, which abuts the Vaishali constituency. Vaishali is the historic place, one of the oldest cities of the world. Vaishali is also the place where Lord Mahavir was born. Vaishali is also the place where Gautam Buddha had come, and it is known for the famous Vaishali heritage site. But the Mahua constituency, where I am here today, has become a hot seat. Why? Because
Lalu Prasad Yadav's son Tej Pratap Yadav is contesting from the Janshakti Janata Dal here. It is his first election after the formation of his own party, after being estranged from his own family, after a family feud that has shocked the entire state of Bihar and also the nation. The seat of Mahua will decide the fate of Janshakti Janata Dal and also Tej Pratap Yadav. The seat has multiple problems. People here allege that there aren't sufficient roads here. The few roads that have been constructed were only constructed when Tej Pratap Yadav had first won from here in 2015, and also credit him for bringing in the constituency a medical college which is going to help them avail basic health facilities. We are going to talk to people and also understand the mood from here in Mahua on the ground. With just days left before the first phase of polling begins, campaigning is underway in full swing. Tej Pratap Yadav is leaving no stone unturned in his effort to win a third term as a member of Bihar's Legislative Assembly. We spoke to the people of Mahua about the election and received some very interesting answers. Mahua Mukundpur block of the Mahua constituency in Bihar. This is one of the hot seats of Bihar because Lalu Prasad Yadav's son Tej Pratap is fighting here from the Janshakti Jannayak Dal, which is a new party which has been floated by Tej Pratap and his supporters. The fight is from this seat is between Tej Pratap and the sitting RJD candidate Mukesh Roshan. We have some villagers here. We are going to talk to them and ask them what are the issues of Mahua and who exactly is making the buzz here. यहाँ पे आप बता रहे थे कि यहाँ पे जो फाइट है मेनली वो तेज प्रताप जी और राजद के बीच में रहती है. फिलहाल क्या मामला लग रहा है, कैसे लग रहा है? अभी तेज प्रताप जी सब पे भारी पड़ रहे हैं. हाँ, तेज प्रताप जी विकास किए हैं और एक मेडिकल कॉलेज महुआ को दिए. वो मेडिकल कॉलेज सब कुछ पे भारी पड़ रहा है और यहाँ की जनता जो है सो जात पात या दल से हट करके लालू जी का बेटा तेज प्रताप के साथ है. हर जाति हर धर्म के लोग उनको वोट कर रहे हैं. पहले तो जो राजद के कैंडिडेट थे यहाँ पे वही जीते हैं, सिटिंग कैंडिडेट मुकेश रोशन है ना, और लालटेन पे वो लड़ रहे हैं. और फिलहाल जो लालू जी के जो पुत्र हैं तेज प्रताप जी वो जनशक्ति जनता दल से लड़ रहे हैं. नई पार्टी है, ब्लैक बोर्ड साइन मिला है उसको. तो कुछ है, थोड़ा असमंजस की स्थिति में है लोग. असमंजस थोड़ा बहुत असमंजस में है, लेकिन वो असमंजस क्या है असमंजस? असमंजस है कि एक तरफ कुछ लोग का कहना है कि लालटेन, एक तरफ लालू जी के लाल. तो सबका यही मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि लालटेन से लाल को रख लेना है और टेन को हटा देना है. ये नारा है, लाल को रखना है, टेन को हटा देना है यहाँ से. बाकी 242 सीट पे जो है सो आरजेडी का समर्थन, एक महुआ विधानसभा पे लालू यादव के पुत्र का समर्थन तेज प्रताप जी. आप कह रहे थे कि असमंजस की स्थिति है यहाँ पे, ऐसा क्यों? असमंजस की स्थिति सिर्फ हमको नहीं, पूरे विधानसभा महुआ में है. सब लोग असमंजस में है. जो लोग पहले राजद से थे, जो राजद के सपोर्टर लोग थे, वो उनको ज़्यादा असमंजस है. बाकी बात जो अदर दल को जो वोट करने वाले उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. अब रह गई बात यहाँ की, तेज प्रताप बेशक अच्छे इंसान भी हैं और काम भी किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन अब उनकी जो पार्टी है, नई पार्टी है, वो आरजेडी में रहे नहीं. और मुझे नहीं लगता है कि सरकार में कहीं से वो शामिल होंगे. अगर जीत के भी जाते हैं तो फिर भी जो पहले जो उम्मीद था तेज प्रताप से, या जो पहले वो आरजेडी में रह के काम किए हैं, वो काम शायद ऐसे निर्दलीय या फिर छोटे किसी पार्टी से रह के वो नहीं. मतलब तेजस्वी सरकार बनाना जरूरी है. हाँ, तेजस्वी सरकार बनाना जरूरी है. मान लीजिए अगर वो एनडीए में भी अगर जाते हैं, अगर सरकार में रहेंगे तब तो काम कर सकते हैं. लेकिन आपको भी पता है कि सिर्फ एज ए विधायक कोई कितना कर सकता है क्षेत्र के लिए. जो डायरेक्ट क्षेत्र में रहेगा वही ना काम कर सकता है. विधायक का तो जो फंड होगा वही करेगा. लेकिन सरकार में रहने के बाद तो सरकार में रहना ज्यादा जरूरी है. आप बताइए क्या लग रहा है इस बारी कौन जीत रहा है? यहाँ पे तेज प्रताप जी हैं और मुकेश रोशन जी भी खड़े हैं और वो चिराग पासवान जी की पार्टी ने भी उतारा है. संजय सिंह नहीं जीतेंगे तो तेज प्रताप ही. क्या कारण है? कारण है यहाँ महुआ का नाम विश्व माने पूरे भारत स्तर पर अब लोग जान रहा है कि महुआ में मेडिकल कॉलेज खुल गया. इस कारण से और एक शिक्षक होने के नाते हम तेज प्रताप जी को ही चाहेंगे कि दोबारा यहाँ से बने.
विधायक और फिर से महुआ के विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। मेडिकल कॉलेज की वजह से आप जो है वोट देंगे। और यहाँ पे क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या खामियां हैं, कमियां हैं, क्या है? मुद्दा तो बिहार की राजनीतिक में जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, ये तो यहाँ की बुनियाद रही है, राजनीतिक की बुनियाद रही है ये सब। तो ये सब कारण चलता रहेगा और आजीवन रहेगा। जब तक भारत में चुनावी व्यवस्था रहेगा तब तक यह चलता रहेगा। तो इसका क्या खामियाजा होगा? यहाँ पे आप कह रहे हो जातिगत समीकरण ज्यादा जरूरी है, तो जातिगत समीकरण कैसे, किसके? कह रहे हैं कि जातिगत समीकरण, जातिवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद और भाषावाद पर भारत तो बोल रहे हैं। हाँ, भारत की राजनीति की बुनियाद है यह। केवल यहाँ पे किसके पक्ष में है? यहाँ पक्ष विपक्ष नहीं, इस सब से परे उठकर, सबसे अलग होकर सब आदमी विकास के नाम पर वोट दे रहा है और तेज प्रताप जी के काम पर वोट दे रहा है। किसी कोई मेडिकल कॉलेज पे आप वोट कर रहे हैं। सो क्लियरली यू कैन सी दैट residents of Mahua Mukundpur area are affirming that they are going to vote for Tej Pratap on the basis of the medical college that he had ensured that this constituency gets in his previous term. There are some individuals who also think that while Tej Pratap might have done a lot for this particular constituency during his first term, it was only because he was a part of the government back then. And it is important for them to ensure more development under him only if he becomes a part of the government. But only time will tell whether Tej Pratap would be able to join some coalition in the government whenever it's formed. We are in the Fulvaria Panchayat area of the Mahua constituency, from where Tej Pratap is pitted against the RJD's Mukesh Roshan, who is also the sitting MLA. I have with me a couple of youngsters whom we are going to talk to and ask them what they have to say about this particular contest. यहाँ पे तेज प्रताप जी खड़े हैं, ब्लैक बोर्ड निशान से इस बार लड़ रहे हैं। उनकी नई पार्टी बनी है जनशक्ति जनता दल। क्या होगा यहाँ पे? लगता है कि वो जीत जाएंगे? 100 में 100% उनका ही जीत होगा। उनका जीत होगा? 100 में 100%। तो ये जो मुकेश रोशन जी हैं राजद से, इनके साथ इनका बटेगा नहीं वोट? उनका देखिए, उनका आरजेडी का हम बैंड भी पहने हुए हैं, बट वो आरजेडी से नहीं बैंड आप आरजेडी का पहने हुए हैं, बट यहाँ से मुकेश रोशन नहीं जीतेंगे और तेज प्रताप यादव पूरा 100 में 100% जीत जाएंगे। हाँ। ऐसा क्यों, क्या वजह है? क्योंकि वो यहाँ पे महुआ में कुछ काम किए हैं, मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं और उनसे काफ़ी उम्मीद है। वो जिला बनाने का सोचे हैं और फिर वही इंजीनियरिंग कॉलेज और स्टेडियम भी खोलने का काम करेंगे। तो काम के ऊपर, स्टेडियम और मेडिकल कॉलेज के ऊपर लोग जो हैं यहाँ पे ज़्यादा वोट करेंगे। आप बता रहे थे कि नहीं, कुछ लोग जो हैं वो एनडीए को वोट करेंगे, क्योंकि जो समीकरण है वो ऐसा कहते हैं कि मतलब एलजेपी आरवी का जो प्रत्याशी यहाँ खड़ा है उसको भी वोट मिलेगा। व्यक्तिगत तौर पे अगर चुनना चाहे तो हम आसमा परवीन को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट खड़ी हैं वो तो? हाँ, फिर भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो हारने के बाद 10 साल हमारे समाज के बीच रही, हम उसको सपोर्ट करते हैं जी। तो निर्दलीय प्रत्याशी आसमा परवीन काटेंगी तेज प्रताप जी का वोट? कॉस काटेगी। हो सकता है तो इस बार कुछ अलग होगा माहौल। अच्छा, हाँ। और ये एलजेपी आरवी से जो खड़े हैं संजय सिंह, उनका क्या होगा? उनका भी तो देखा जाएगा। मेरा जो मत है हम देंगे आसमा परवीन को खुल के। जी, और भी लोग हैं हमारे साथ। आप बताइए यहाँ से किसकी हवा बन रही है? आसमा दीदी। आसमा दीदी जीतेंगी? हाँ, जीतेगी। तो वो तो निर्दलीय खड़ी हैं। निर्दलीय, उससे कोई मतलब नहीं। उनको समाज में ज़्यादा पकड़ है, समाज में रहती है, सामाजिक व्यक्ति है, शिक्षित है। और यहाँ से तेज प्रताप जी भी खड़े हैं, जनशक्ति जनता दल नई पार्टी बनी है। फिर उसके बाद उनका सामना कर रहे हैं मुकेश रोशन राजद से, वो भी खड़े हैं। उनको नहीं? उनको नहीं, आसमा दीदी को केवल। आसमा दीदी, ठीक है। अगर एक अच्छे नेता के तौर पे अगर चुना जाए, ठीक है, अगर समाज, अगर किसी भी हम लोग के सुख दुख में अगर चुना जाए, तो एक आसमा परवीन ऐसा शख्सियत है जो हम लोग के हर मुसीबत, हर चीज में आती है। तो आप, you can clearly see that people here are saying that they want an insider, that is somebody, a localite who has been there for them and been working for them for a very long time. And Asma Parveen, who was earlier standing from another party in the previous election, now she's fighting as an independent. She's also pretty popular.
But what Asma Parveen is going to do is dent the vote bank of the RJD and Tej Pratap Yadav, who are both looking at the same vote bank under the MY combination. I have some more villagers with me whom I'm going to ask about their choice of the candidate. यहाँ पे तेज प्रताप जी खड़े हैं, उनके सामने मुकेश रोशन है राजद से, और वो चिराग पासवान जी की पार्टी से खड़े हैं संजय सिंह। किसकी हवा ज़्यादा है? ज़्यादा तो तेज प्रताप के ही जो आ रहे हैं, इसलिए कि तेज प्रताप इसलिए कारण है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज दिए, रोड का काम जो है ना वो सुधारे। जब मैं यहाँ पर विधायक थे, अभी फिर जो है ना वादा किए हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज हम देंगे, तो आदमी के रुझान जो है इस पर जो है ज़्यादा लग रहा है कि बच्चे लोग के भविष्य जो है आने वाला जो है समय अच्छा हो। यहाँ पे मुद्दे क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या ज़रूरतें नहीं हैं पूरी हुई अभी तक? अभी ज़रूरत क्या है कि जो है ना थोड़ा सा बस्ती के जो नाली उली साफ सफाई का जो है ना काम जो है ना नहीं हुआ है। ये सब नाली उली या पानी का जो है निकासी जो है होना चाहिए, निकासी नहीं होती है इस चीज़ का। तो बिजली का जो है, बिजली है बाकी जो है ना मतलब करती है ज़्यादा। और दूसरी बात यह है कि लाइट जो है ना बस्ती में जो है होना चाहिए हर खंभे पे, वो अभी नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ का जो है ना काम होना चाहिए। और तेज प्रताप जी जो है ना वादा किए हैं कि हम जीत के आएंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है यहाँ। Clearly, Tej Pratap's promise of opening an engineering college in Mahua is resonating within a major section of people. But I have some youngsters also with me. I'm going to ask them what do they feel about the candidates that the parties have fielded from here. यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़े हैं आपको तो मालूम ही है, किसका हवा लग रहा है? तेज प्रताप का ही हवा है इस बार यहाँ पे, क्योंकि लालू यादव के बेटे हैं। अगर यहाँ से विधायक बनते हैं तो वहाँ विधानसभा में कोई मंत्री पद ही उनको मिलेगा और यहाँ का ज़्यादा। लेकिन वो तो अब जनशक्ति जनता दल बना लिए, जो अलग पार्टी है, और राजद से अब अलग हो गए हैं एक तरीके से। और लेकिन फिर भी लालू प्रसाद जी के बेटे हैं, तो कैसे यहाँ पे बनेगी बात? जैसे पार्टी कोई भी बन गया, अगर वो जीत के आते हैं तो जाएंगे तो फिर उसी में अटैच होंगे। कहने के लिए कुछ भी है लेकिन बाद में वही होगा। अच्छा, अंदर खानी तय है सब? वो होगा ही, वही होगा। अच्छा, ये आपको लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है, यहाँ से जीतेंगे भी वही और जाएंगे फिर मिली। ये क्या नूरा कुश्ती हो रही है? महागठबंधन भी उनको सपोर्ट कर रही है, यहाँ से वही जीतेंगे। महागठबंधन सपोर्ट करी कैसे? बिल्कुल आया है खबर के अंदर से कि सपोर्ट में है, उन्हीं के सपोर्ट में है। ये चुनाव में जो प्रत्याशी राजद ने उतारे हैं वो अपना कैंपेन करने आए हैं? कैंपेन तो कर रहे हैं वो, लेकिन उनका इस बार नहीं है, यहाँ पे नहीं होने वाला। पिछले बार थे पंचवर्षी में, लेकिन काम किए नहीं। वो सिर्फ शादी में मरनी में जाने से तो होगा नहीं, काम करना पड़ेगा। काम किए नहीं, इसलिए जनता नाखुश है इस बार, इसलिए चेंज करना चाहती है। So clearly, residents here feel that while Tej Pratap might have parted ways from the RJD, the reality may be a little different, and it is very much possible that the RJD is actually supporting Tej Pratap from the backhand. But what is really going to happen, only time will tell on November 6th, when people are going to turn out and vote and press the EVM button. I'm standing in the Mahua Chak Mujahid area of the Mahua constituency, from where Lalu Prasad Yadav's son Tej Pratap is fighting. I have with me some of the villagers whom I'm going to talk about. यहाँ पे किसकी हवा लग रही है, किसका पलड़ा भारी है? तेज प्रताप का। क्या कारण है? वो काम अच्छा कर रखे हैं। वो क्या क्या काम है? मतलब मेडिकल कॉलेज करवाया, रास्ता बनवाया, सारा कुछ करवा रखे हैं वो। लेकिन राजद का यहाँ पे सिटिंग विधायक है मुकेश रोशन, वो काटेगा नहीं वोट? वोट तो कुछ ना कुछ तो कटेगा ही। उसका असर होगा? आपको लगता है कि सीट निकल जाएगी? निकलना तो चाहिए, जैसा माहौल है निकलना चाहिए। यहाँ पे जो समीकरण है उसमें आपको क्या लग रहा है कि फिलहाल वोट बटेगा? जो आप बता रहे थे कि यहाँ पे 22% यादव वोट है और 11% मुस्लिम वोट है, तो उनका वोट कटना संभव है? संभव है, बिल्कुल संभव है जी। उसका फायदा किसको होगा फिर? तो वो संजय सिंह जी को फायदा होगा? जी नहीं, तेज प्रताप को ही फायदा होगा। कैसे? लेकिन काम किया है इसलिए उसको वोट ज्यादा मिलेगा महुआ में जी। काम का है, बाकी सब चोर है। लेकिन आप बता रहे थे कि यहाँ पर जो है ब्लैक बोर्ड से अभी वो आए हैं, पहले तो वो लालटेन से आते थे, अभी लालटेन वाले भी खड़े हैं मुकेश रोशन जी। तो मुकेश रोशन जी को जो वोट जो लालू जी टिकट दिए हैं, तो टिकट से नहीं होता है, काम जो किया है उसको मिलेगा। जैसे खेती करेंगे हम, उपजाएगा कोई दूसरा आके नहीं, जो उपजाए जो बोया वही काटेगा। काम नहीं किया उन्होंने? कोई काम नहीं किए हैं। यहाँ क्या क्या पेंडिंग है चीजें? बहुत पेंडिंग है अभी तो। ये बहुत आदमी के इंदिरा आवास नगर पालिका से नहीं मिल पाया है। पहले सड़क भी नहीं थी, सड़क बनवाया है। अस्पताल वो भी बनवाया है।
और सरकार जो भी है सो मालूम है, आप देख रहे हैं आप लोग। जो आप बता रहे थे कि कुछ तो संभावना है कि बटेगा वोट, तो उसका फायदा संजय सिंह को नहीं हो जाएगा? हो सकता है, मैं भी। निर्णायक कौन रहेगा यहाँ पे? कौन सा ऐसा तबका है जो निर्णय करेगा? तो तबका को तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि तेज प्रताप यादव का वोट हर बिरादरी और हर समाज के वर्ग के लोगों में है, क्योंकि उन्होंने महुआ के लिए कुछ ऐसा काम कर रखा है। अब अस्पताल बना तो पर्टिकुलरली एक सेपरेट कास्ट के लिए तो नहीं बना है, वो तो सभी के लिए बना है। ऐसा थोड़ी नहीं कि उसमें सिर्फ यादव जाएंगे मुस्लिम जाएंगे, उसमें सभी इलाज करवा सकते हैं। तो तेज प्रताप का वोट हर कास्ट, हर बिरादरी, सारे जगह है। और संजय सिंह जी का वोट कहाँ पे है? संजय सिंह का वोट वो अपना मेहनत कर रहे हैं, देखिए अब तो जब रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा कि उनको कितना % वोट मिलता है, कहाँ उनका वोट था। मैं कैसे बता सकता हूँ उनका वोट कहाँ? कुछ बस्तियों में बता रहे थे कि नहीं, वो उनका थोड़ा कोर वोट है वो तो होगा ही। हर पार्टी का अपना कोर वोटर होता है, जैसे आरजेडी का है कोर वोट होता है, MY समीकरण जिसकी हम लोग बात करते हैं, LJP का वैसा है, मुकेश सहनी का है वैसा सहनी का, तो कोर वोट तो जिनका है वो तो रहेगा ही। हाँ, लेकिन तेज प्रताप यादव का वोट हर कास्ट में, हर बिरादरी में है। इन्होंने महुआ के लिए ऐसा कुछ कर रखा है। अब देख रहे हैं जैसे रोड वगैरह है, मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया। महुआ में जब 5 साल बोर्ड हैं तो उन्होंने विकास का काम किया है, तो उनका वोट तो हर बिरादरी में है। So clearly, a section of people feel that Tej Pratap is going to have a difficult time fighting this election, but he might also emerge as a winner on the final day of the result. After an intense day of canvassing amongst the masses of Mahua, we got the opportunity to speak with the candidate himself. क्या ये माना जाए कि राजनीति में संभावनाओं की राजनीति होती है, चुनाव के बाद आप खुले रखेंगे अपने रास्ते, ऑप्शन ओपन रखेंगे और सरकार बनाने के लिए तैयार रहेंगे? एनडीए हो, महागठबंधन? देखिए, जब वैसा सिचुएशन आएगा तो कोई भी तैयार रहता है, चाहे महागठबंधन की सरकार बने, कोई भी हो। जब वैसा अगर ऑप्शन मिलता है तो सरकार का एक पार्ट बनने के लिए तो आदमी तो रेडी ही होता है, ताकि पावर में रहे। पावर में रहेगा तो ही हम काम कर सकते हैं। लेकिन आप एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि दोबारा वापस नहीं जाऊंगा कभी, तो महागठबंधन में वापस जाएंगे? ना, देखिए वो सिचुएशन जिस तरीके से बनेगा उस तरीका। महागठबंधन में जाने का ये मतलब थोड़े है कि हम अपने ब्लैक बोर्ड को छोड़ देंगे। हमारी पार्टी रहेगी, हमारा ब्लैक बोर्ड रहेगा, सब चीज रहेगा जी। तो संभावनाएं, क्योंकि जो शिक्षा का बात करेगा, जो स्वास्थ्य का बात करेगा, जो बेरोजगारी मुक्त करने का बात करेगा, पलायन को रोकने का बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। ये तो सभी पार्टियां कर रही है, लेकिन तेजस्वी जी ज्यादा बोल रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो जाने, उनकी पार्टी जाने, वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। हमारा पार्टी जनशक्ति जनता दल है, ब्लैक बोर्ड है सिंबल। लेकिन संभावनाएं खुली हैं। मैंने देखा कि महुआ क्षेत्र जो है वो आपका पहले भी आपका गढ़ रहा, वहाँ पे जो है आपने शुरुआत भी की एक तरीके से अपनी राजनीति की, और वहाँ से आपका एक लगाव भी है। जब आप नॉमिनेशन करने गए तो दादी जी की एक प्रतिमा लेकर आप साथ में गए, क्या एक संदेश देने का प्रयास आप कर रहे थे? अरे एक संदेश क्या, घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। आज हमारे पिता उन्हीं का आशीर्वाद लेकर मुख्यमंत्री बने जी। लेकिन दादी जी की प्रतिमा आपने साथ रखी। हाँ। लालू जी की नहीं थी, राबड़ी जी की नहीं थी, इसीलिए सवाल कर रहे हैं। नहीं तो उनके माता पिता का था ना, इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है जी। आपको दादी जी का तो आशीर्वाद उनको तो खुशी ही होगा, दुखी थोड़े हुए होंगे जी। आपको दादी जी का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, लेकिन आपकी सिस्टर हैं रोहिणी जी, उनका भी आशीर्वाद आपको मिल रहा है। हाँ तो मिलेगा ही, बड़ी बहन है तो आशीर्वाद क्यों नहीं मिलेगा जी। तो माता जी का आशीर्वाद है, बातचीत हो रही है? नहीं, बातचीत नहीं होती मेरी। लेकिन हमें तो इनसाइडर्स बता रहे थे कि आपके लिए शुभ भावना रखती हैं और प्रयास भी कर रही हैं कि आप महुआ से जीते। नहीं, ऐसा बात नहीं, बातचीत नहीं होती है। फोन भी कर रही हैं? ना, कोई फोन नहीं कर रही है, गलत बात है। ऐसा नहीं है? नहीं। अभी जो है महुआ क्षेत्र में कहा जा रहा है कि क्योंकि राजद के भी सिटिंग कैंडिडेट हैं मुकेश रोशन जी, और वो अपना चुनावी प्रचार भी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या ये माना जाए कि राजद की तरफ से पूरी तरीके से एक लड़ाई आर पार वाली है, या केवल ये दिखावे की एक लड़ाई है क्योंकि राजद के तरफ से कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा है वहाँ पे, महुआ में कोई बड़ा चेहरा नहीं उतार रहे हैं, केवल वही अपना प्रचार कर रहे हैं मुकेश जी? वो कहाँ प्रचार करें नहीं प्रचार करें, उससे क्या, वो आदमी तो कल तो देखें ही जिस तरीके से जिस पंचायत में रात में गए घूमने के लिए, कैसे विरोध कर रहा है उनका। हारेंगे? जनता तो हराएगी ही ना।
लेकिन एक चीज़ हम भी क्योंकि वहाँ घूम रहे थे, एक चीज़ देखने को मिला कि वहाँ पे राजद और ब्लैक बोर्ड के सिंबल में थोड़ा कंफ्यूजन है। लोग जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। आपकी टीम भी बता रही है कि अब हम ब्लैक बोर्ड से लड़ रहे हैं। क्या लगता नहीं कि राजद और जनशक्ति जनता दल में जो ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है आपका MY का, वो हिलेगा, बंटवारा होगा, उसका विरोधी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? विरोधी क्या इस्तेमाल करेंगे नहीं इस्तेमाल करेंगे, फिलहाल ये चीज़ हम नहीं जानते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, सब लोगों को क्लियर पता है। कुछ होते हैं गांव के लोग जो उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अपनी टीम लगी हुई है पूरा उनको समझाने के लिए। फिलहाल जो है सोशल मीडिया पे हर एक तरीके से प्रचार, ऐड वगैरह सब चल रहा है। जी, आपने एक बयान दिया जननायक को लेकर। जननायक एक ऐसा शब्द है जो पूरी राजनीति में बिहार की गुंजाइश। जननायक वहाँ है, देखिए लालू जी हैं जननायक, लोहिया जी हैं जननायक, मुलायम सिंह जी जननायक, कर्पूरी ठाकुर जननायक, जयप्रकाश नारायण जननायक। तो ये लोग जननायक हैं। और ये दो चेहरों की जिन्होंने बात की, तेजस्वी और राहुल की, तो ये लोग अभी युवा हैं। जननायक अभी बनने में टाइम लगेगा, मैंने ये कहा। जी, तो जननायक बनने में टाइम लगेगा। तो जो पोस्टर अभी आ गया है बिहार के जननायक तेजस्वी जी के ऑफिस के बाहर लगा है। पोस्टर कोई भी कहीं से भी लगा सकता है, हमारा भी लगा सकता है जननायक। पोस्टर क्या चीज़ होता है? जननायक टाइम लगता है ना बनने में। आपकी नजर में अभी दोनों ही राजनेता जननायक वाली स्थिति में नहीं है? नहीं। फिलहाल कोई लगता है राजनीति में, भारत की राजनीति में कौन है जननायक की स्थिति जो ले सकता है? अब कौन ले सकता है नहीं ले सकता वो पब्लिक बताएगा ना, हम थोड़े बनाते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं कि जननायक है। As the election draws closer, the anticipation in Mahua is reaching a fever pitch. For the people on the ground, there is no way to conclude a definitive winner, and Mahua will surely be one of the constituencies to watch out for in this Bihar election. Bureau Report, NewsX.